Hello dear friends, welcome to the Sufi Form channel. I am Dr. Sufyan Ahmed, HOD of Pharmacognosy. In this session, we'll discuss about the industrial production, estimation and utilization of digoxin. In this video, we learn about crude drug, biological source, synonym, biological source and cultivation, macroscopy, microscopy and different method of extraction and isolation, and also discuss about the estimation and identification by the chemical test and assay method, and also discuss about the utilization of the crude drug. And now let's start digoxin. So digoxin is isolated from digitalis drug. Now see the synonym of digitalis, that is the foxglove leaves. Digitalis biological source. Digoxin is a cardiac glycoside obtained from the dried leaves of Digitalis purpurea and Digitalis lanata. These are the two different species, that is the Digitalis purpurea and Digitalis lanata, belonging to family Scrofloriaceae. Now see the geographical source. The plant are cultivated and collected in England, other part of Europe, US and in India. And in India it is cultivated in Kashmir, Mungakpo and Nilgiris. Plant habitat, it is a biennial or perennial herb of about 1 to 2 meter in height. Method of harvesting, seed propagation method. It is generally cultivated or germinated by using the seed, or you can say it is a seedling method. Harvesting, hand picking method. And preparation, the good quality of digitalis is grown specifically from the seed of collected strain that will invariably yield only the leafy plant enriched with the glycoside content. Even the soil is usually sterilized by steam before the commencement of sowing, and mostly it is grow both appreciably and luxuriantly at the altitude ranging between 1600 to 300, preferably in the shady environment. In actual, the practice, the sowing of seed is performed in autumn, October or November, and the seedling are virtually transplanted in the field in the following spring, March और अप्रैल. तो यहाँ पर प्रिपरेशन में क्या करते हैं कि सबसे पहले हाई क्वालिटी ऑफ डिजिटैलिस अगर कभी हमें ऑब्टेन करना है, इट इज जनरली प्रोपोगेटेड बाय दी सीड. उसको सीड से प्रोपोगेट करते हैं. तो उसके लिए जो है बिफोर सोइंग द सीड को जो सो करने के पहले जो हम सॉइल ले रहे हैं, तो सॉइल को क्या करना है, सबसे पहले इट गेट स्टेलाइज, उसको जो स्टेलाइज करना है बाय यूजिंग दी स्टीम से उसको स्टेलाइज करेंगे. स्टेलाइज करने के बाद में जो है उसके लिए जो है शेडी जो है वो इन्वायरमेंट चाहिए. उसके अंदर जो है वो क्या रहता है, लग्जरेंटली जो है वो उसमें ग्रो होता है. और उसको जो है सोइंग ऑफ द सीड इज परफॉर्म इन द मंथ ऑफ और इन दी ऑटम सीजन, अक्टूबर और नवंबर के अंदर उसको जो है क्या करते हैं, सीड को सो करते हैं. और सीडलिंग आर वर्चुअली ट्रांसपायलेटेड, उसको जो है ट्रांसपायलेट कब करते हैं, मार्च से अप्रैल के अंदर जो उसको ट्रांसपायलेट करते हैं. द लीव्स आर नॉर्मली हैंड पिक्ड इन आफ्टरनून ड्यूरिंग द अगस्त एंड सितंबर. यानी जो उसको लीव्स जो रहता है उसको लीव्स को जो है पिक्ड करते हैं कब, ड्यूरिंग द अगस्त और सितंबर. इन द फर्स्ट एंड सेकंड ईयर when almost 2/3 of the flower have fully bloomed, and the leaves collected in the first year are found to contain the highest percentage of glycoside. तो फर्स्ट टाइम जब उसको हम कलेक्ट करते हैं, लीफ को कलेक्ट करते हैं, तो उसके अंदर जो है
हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ग्लाइकोसाइड जो है वो क्या होता है, ऑब्टेन होता है. एट द बेसल लीव्स एंड द वन लोकेटेड एट द टॉप आर कलेक्टेड एट द एंड. द डिसकलर्ड लीव्स आर शॉर्टेड आउट एंड रिजेक्टेड आउटराइट. यानी जो डिसकलर्ड लीव्स जो जितनी भी रहते हैं तो उसको क्या करते हैं, शॉर्ट आउट कर देते हैं और उसको जो क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं. मैक्रोस्कोपी. सो मैक्रोस्कोपी इन दैट कलर dark grayish green color, order slide, test beater, size length 10 to 14 centimeter, width 4 to 15 centimeter, shape ovate, lanceolate to broadly ovate. Special features: digitalis leaves are more or less consent venation together with the pronounced with marked venlet on the under surface. The leaves are invariably clumped and broken. Now see the microscopy of digitalis purpurea. तो यहाँ पर माइक्रोस्कोपी में जो है हमें जो है अपर एपिडर्मिस, दैट इज दी अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस, ये दो हो गया. और यहाँ पर जो सेंटर में जो पोर्शन के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, दैट इज दी वॉस्कुलर बंडल. वॉस्कुलर बंडल के अंदर हमारा जाइलम और फ्लोएम उसके अंदर प्रेजेंट होता है. और यहाँ पर अपर एपिडर्मिस और लोअर अपर एपिडर्मिस के नीचे और लोअर एपिडर्मिस के ऊपर यहाँ पर क्या रहता है, दैट इज दी पाइलोसाइड सेल. पाइलोसाइड सेल्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं. और उसके बीच में जो क्या प्रेजेंट रहता है, दोनों के बीच में स्पॉन्जी सेल यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं. और सेकंड थिंग, यहाँ पर जो है अपर एपिडर्मिस जो मिडरिप रहती है, तो मिडरिप के सेंटर में, मिडरिप में जो है हमारा क्या प्रेजेंट रहता है, यहाँ पर अपर एपिडर्मिस के नीचे यहाँ पर कोलिनकाइमा. सेम जो है वॉस्कुलर बंडल के लास्ट में नीचे जो है लोअर एपिडर्मिस में भी कोलिनकाइमा जो है ये प्रेजेंट होता है. और ये जो एडिशनल फीचर्स है, दैट इज दी ट्राइकोम्स इज ऑल्सो प्रेजेंट बोथ upper and lower epidermis. So this is about the microscopy of digitalis purpurea. Now see the chemical constituent. Digitalis purpurea contain 35 glycosides. The primary glycoside are purpurea glycoside A and B. तो इसमें प्राइमरी ग्लाइकोसाइड जो है purpurea glycoside A और B इसके अंदर प्रेजेंट रहता है. It also contain pyridoside H and glucotaxolone, loxine and viridoxine and glucoviridoxine and digitoxygenine, gitoxygenine, gitaloxine are also important medicinal compound. They are also called the secondary glycoside, that is the secondary glycoside, and they contain anthraquinone derivative like digitolitine, methoxy, 2-methyl anthraquinone, etc. It contains 2-saponin, digitonin and gitonin, and flavonoids are present. And it also present the tannins and pectin. Digitalis contain कार्डियक ग्लाइकोसाइड. तो डिजिटैलिस के अंदर कौन सा जो है वो कार्डियक ग्लाइकोसाइड जो है वो प्रेजेंट होता है, दैट इज दी कैडिनोलॉइड्स are as a active constituent of the drug. So that is the active constituent of the drug. The chief constituent, or you can say active constituent or major constituent of the digitalis drug in that purpurea glycoside A, purpurea glycoside B इसके अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है. purpurea glycoside A का जब हम enzymatic हाइड्रोलिसिस करेंगे तो it give the digitoxin और ग्लूकोज उसमें हमें ऑब्टेन होता है. यहाँ पर दो कंपाउंड ऑब्टेन होते हैं, डिजिटॉक्सिन और ग्लूकोज. अब जब इसका जो है डिजिटॉक्सिन का जो हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, उसका जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें क्या ऑब्टेन होता है, डिजिटॉक्सिजिनीन और डिजिटॉक्सोज, इसमें हमें क्या होता है, ऑब्टेन होता है. सेकंड, परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड बी. तो बी में क्या रहता है, उसका जब हाइड्रोलिसिस करते हो तो हमें ऑब्टेन होता है जीटॉक्सिन प्लस ग्लूकोज, हमें यहां पर ऑब्टेन होता है. और जब जीटॉक्सिन का जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, यहां पर उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें क्या ऑब्टेन होता है,
डिजिटॉक्सिजिनिन और डिजिटॉक्सोज हमें जो है वो ऑब्टेन होता है। तो इस तरीके से डिजिटैलिस परप्यूरिया का हाइड्रोलिसिस करने पे हमें जो है डिजिटॉक्सिन मिलता है और उसका हाइड्रोलिसिस करने पे हमें क्या मिलता है, डिजिटॉक्सिजिनिन और डिजिटॉक्सोज मिलता है। सेम थिंग जो है डिजिटैलिस परप्यूरिया के अंदर जो है उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, हमें यहाँ पर दो कंपाउंड मिलता है, डिजिटॉक्सिन और ग्लूकोज। डिजिटॉक्सिन का जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें दो कंपाउंड मिलता है, दैट इज दी digitoxygenine and digitoxose. Now you can see the structure of digoxin, that is the chemical formula C41H64O14. सो यहाँ पर जैसे हमने जो है हाइड्रोलिसिस करके बताया था पिछली स्लाइड में, डिजिटैलिस परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड ए, परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड ए उसका हाइड्रोलिसिस किए तो ग्लूकोज और डिजिटॉक्सिन मिला। यहाँ पर उसका हाइड्रोलिसिस किए तो क्या मिलता है, डिजिटॉक्सिजिनिन और डिजिटॉक्सोज। सेम जो है परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड बी के अंदर जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ग्लूकोज और डिजिटॉक्सिन मिलता है, और उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, डिजिटॉक्सिजिनिन और डिजिटॉक्सोज हमें ऑब्टेन होता है। सेम जो है उसके अंदर जो है ग्लाइकोसाइड, परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड सी भी उसके अंदर प्रेजेंट रहता है, उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो जिटेलिन और ग्लूकोज हमें ऑब्टेन होता है। उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें यहाँ क्या ऑब्टेन होता है, जिटेलिजिनिन, इसमें हमें क्या होता है, ऑब्टेन होता है। नाउ सी द एक्सट्रैक्शन एंड आइसोलेशन मेथड। तो यहाँ पर जो हम डिफरेंट एक्सट्रैक्शन मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहले जो है फर्स्ट मेथड, इसके अंदर जो है कोर्स पाउडर लीफ का ले लेते हैं। लीफ का कोर्स पाउडर लेने के बाद उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं 50% इथेनॉल के साथ। इथेनॉल के साथ एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसको फिल्टर कर देते हैं। फिल्टर करने के बाद उसके अंदर लीड एसीटेट सॉल्यूशन उसके अंदर ऐड किया जाता है। तो लीड एसीटेट सॉल्यूशन ऐड करने से क्या होगा, उसके अंदर जो इंप्योरिटीज रहेंगी वो क्या होंगी, इट गेट प्रिसिपिटेट, वो प्रिसिपिटेट हो जाएंगी। उसके बाद में उसको सेंट्रीफ्यूज कर लेना है। सेंट्रीफ्यूज करने से क्या होगा, टू रिमूव दी प्रिसिपिटेट। तो उसमें जो प्रिसिपिटेट जो रहेगा वो क्या करेंगे, वो नीचे बैठ जाएगा, उसको जो अपने क्या करना है, रिमूव कर लेना है। तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट इन दी सुपरनन लिक्विड, उसमें दो लिक्विड हमें ऊपर लिक्विड मिलेगा, तो जो सुपरनन लिक्विड रहेगा उसके अंदर क्या प्रेजेंट रहेगा, कार्डियक ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट रहता है। एंड फिर वो सुपरनन लिक्विड को एक्सट्रैक्ट करना है किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ। क्लोरोफॉर्म के साथ एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसको प्यूरिफाइड बाय दी क्रोमेटोग्राफी एंड द रेसिड्यू ऑफ द कार्डियक ग्लाइकोसाइड वाज ऑब्टेन्ड। जो उससे रेसिड्यू हमें ऑब्टेन होगा, दैट इज द कार्डियक ग्लाइकोसाइड, दैट इज द digoxin. Okay, now second method, 25 gram of coarse powder extracted with the petroleum ether for 24 hours. 24 hours के लिए जो उसको क्या करना है, लीफ पाउडर लेना है और उसको एक्सट्रैक्ट करना है पेट्रोलियम ईथर के साथ 24 आवर्स के लिए। एक्सट्रैक्ट होने के बाद उसको ड्राई कर लेना है, ड्राई दी ड्रग, यानी मींस क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्ट हो गया, उसको क्लोरोफॉर्म को इवेपोरेट कर देंगे। अगेन इट इज एक्सट्रैक्टेड विद 50% मीथेनॉल, मीथेनॉल के साथ एक्सट्रैक्ट करेंगे 24 आवर्स के लिए। कलेक्ट द मीथेनॉलिक एक्सट्रैक्ट, मीथेनॉलिक एक्सट्रैक्ट को जो है कलेक्ट करेंगे। डिस्टिल द मीथेनॉल अंडर वैक्यूम, उसको जो है डिस्टिल ऑफ कर लेंगे अंडर द वैक्यूम। एंड कॉन्सेंट्रेटेड एक्सट्रैक्ट वाज ट्रीटेड विद कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ उसको क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे। कलेक्ट दी कार्बन टेट्राक्लोराइड लेयर, जो कार्बन टेट्राक्लोराइड रहेंगी उसको जो है क्या करेंगे, कलेक्ट कर लेंगे एंड इवोपरेट करेंगे। तो इवोपरेट करने के बाद जो रेसिड्यू हमें ऑब्टेन होगा, रेसिड्यू ऑफ डिगॉक्सिन जो हमें उसमें ऑब्टेन होगा। एंड इट इज प्यूरिफाइड बाय द कॉलम क्रोमेटोग्राफी, उसको जो है प्यूरिफाई कर लेंगे बाय यूजिंग द कॉलम क्रोमेटोग्राफी। सो ये हो गया सेकंड मेथड। नाउ सी द थर्ड मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन एंड आइसोलेशन। ड्राइड पाउडर drug was extracted with 70% ethanol, partition with the ethanol extract with petroleum ether। तो उसमें जो है डिस्कार्ड कर देना है पेट्रोलियम ईथर को और सेपरेट दी इथेनॉलिक एक्सट्रैक्ट। उसके अंदर जो है लीड एसीटेट डालेंगे जैसे कि हमने फर्स्ट मेथड में किया था। तो उससे क्या होगा, प्रिसिपिटेशन फॉर्म होगा, प्रिसिपिटेट फॉर्म होगा और वो जो इम्प्योरिटी रहेंगी उसको क्या करना है, सेपरेट कर लेना है। रिमूव दी प्रिसिपिटेट एंड सेपरेट दी ऑर्गेनिक लेयर, ऑर्गेनिक लेयर उसमें से सेपरेट करेंगे। और प्यूरिफिकेशन वाज डन बाय यूजिंग दी कॉलम क्रोमेटोग्राफी एंड क्रिस्टलाइजेशन।
तो ये हो गया हमारा थर्ड मेथड. नाउ सी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट. सो आइडेंटिफिकेशन बाय द केमिकल टेस्ट, रेमंड्स टेस्ट. तो यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले ड्रग को लेना है और उसके अंदर ऐड few ml of 50% ethanol and 1.1 ml of 1% solution of meta dinitrobenzene in ethanol. यहाँ पर लेना है 1% to the solution and add 2 to 3 drop of 20% sodium hydroxide solution. तो सबसे पहले हमने उसमें ड्रग लिया, ड्रग के अंदर जो 50% इथेनॉल और उसके अंदर जो 0.1 ml 1% मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन इन इथेनॉल लिए और उसके बाद जो है 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ 20% सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन उसके अंदर क्या करेंगे, ऐड करेंगे. तो वायलेट कलर्स जो हमें क्या होगा, अपीयर होगा. दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्टिव मिथिलीन ग्रुप. मिथिलीन ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से वायलेट कलर शो होता है. एंड नाउ सी द नेक्स्ट टेस्ट, दैट इज द लीगाल टेस्ट. टू द ड्रग ऐड few ml of pyridine and 2 drop of nitroprusside and a drop of 20% sodium hydroxide solution. A deep red color is produced. This is very simple method. ड्रग लेना है, उसके अंदर जो few ml pyridine और 2 drop of nitroprusside उसके अंदर ऐड करेंगे and add a drop of 20% sodium hydroxide solution. तो उससे क्या होगा, deep red color produce होगा. Bulget test. A piece of lamina or thick section of the leaf and add sodium picrate reagent. If the glycoside is present to orange color will be seen. अगर कभी जो है ग्लाइकोसाइड उसमें प्रेजेंट रहेगा तो क्या देगा, ऑरेंज कलर वो सीन होगा. नाउ किलर किलानी टेस्ट. किलर किलानी टेस्ट is very important for exam point of view. It is most frequently asked this question, that is the Killar-Killarney test. So in that the glycoside is dissolved in a mixture of 1% ferric sulfate. तो ग्लाइकोसाइड को डिसॉल्व करना है मिक्सचर ऑफ 1% फेरिक क्लोराइड सल्फेट सॉल्यूशन इन 5% ग्लाइसियल एसिटिक एसिड. 5% ग्लाइसियल एसिटिक एसिड और 1% फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन के अंदर उसको डिसॉल्व करेंगे एंड ऐड 1 or 2 drop of concentrated sulfuric acid. A blue color developed due to the presence of deoxy sugar. Now next is xanthadrol test. The crude drug is heated with 0.1% to 5% solution of xanthadrol in glycine acetic acid containing 1% HCl. A red color is produced due to the presence of 2-deoxy sugar. Identification test by using the TLC method. जैसे हमने पिछले देखा, that is the chemical test, identification by the chemical test. Now see identification test by using the TLC method. उसके लिए जो है स्टेशनरी फेज यूज होंगी, that is the pre-coated silica gel, मोबाइल फेज बेंजीन एंड इथेनॉल, सैंपल जो है लीफ का एक्सट्रैक्ट रहेगा. डिटेक्टिंग एजेंट पैरा एनिसाल्डिहाइड पर क्लोरिक एसिड. ऑब्जर्वेशन यूवी एट 350 नैनोमीटर ब्लू स्पॉट वाज प्रोड्यूस्ड. आइडेंटिफिकेशन टेस्ट बाय यूजिंग टीएलसी, दैट इज द सेकंड मेथड. स्टेशनरी फेज सेम प्री-कोटेड सिलिका जेल. मोबाइल फेज इथिल एसीटेट मिथेनॉल वाटर 81, 11 and 8 is used. Sample the plant extract, leaf. Detecting agent, it is reagent. Observation, blue violet spot. Estimation, the colorimetric estimation, उसके लिए जो क्या करना है, digoxin extract is treated with the 3,5-dinitrobenzoic acid and benzyl trimethyl ammonium hydroxide के साथ उसको ट्रीट करेंगे तो ब्लूइश रेड कलर इज फॉर्म, ब्लूइश रेड कलर जो वो ऑब्टेन होगा. एंड दिस इज डन बाय यूजिंग द colorimetrically measured at 550 nanometer. And ISO of digoxin, तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले weigh about 40 mg of digoxin, dissolve it in 95% of ethanol and make up volume
to 50 ml and pipette out 5 ml from above stock solution and make up the volume to 100 ml with 95% ethanol. Again pipette out 5 ml from the above solution and add 3 ml of alkaline picric acid. Allow to stand for 30 minutes and measure the absorbance at 495 nanometer. Utilization. It is used as कार्डियोटॉनिक. तो ये जो है कार्डियोटॉनिक के लिए जो बहुत फेमस ड्रग है दैट इज द डिजिटेलिस and it is used in the various form like tablet, capsule and in the treatment of congestive heart failure disease, arterial flutter and trial fibrillation and paroxysmal atrial trachea and employed in the treatment of congestive heart failure and diuretic in the cardiac edema. So this is my more video and you can search by my channel Sufiform Dr. Sufyan Ahmed. Thank you for watching. Please subscribe, like and share and press the bell like button. And you can also visit my blog for PPT or notes www.drsufyan.blogspot.com and next is the www.sufiform.blogspot.com. Thank you for watching.